Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. Hello students, welcome to Study IQ. Today we will discuss Project Vishnu. Project Vishnu of DRDO that will going to change Asia's military dynamics. How? Because DRDO announced that they will be developing extended trajectory long duration hypersonic cruise missile that will achieve the speed of Mach 8 and range of 1500 किलोमीटर. अब पाकिस्तान के लिए भी दुख की बात है और चाइना के लिए भी दुख की बात होगी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के पास जाएगा. तो पहले तो इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि ये क्या क्या अचीव करने वाला है. दैट इज एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट विल बी अचीविंग द स्पीड मैक एट अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर पर सेकेंड. रेंज हो जाएगी 1500 किलोमीटर, कैपेबल ऑफ टारगेटिंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ चाइना एज वेल एज पाकिस्तान. That is why we are saying that this project will change military dynamics in Asia. Payload कितना होगा? Payload can carry conventional as well as nuclear warhead weighing 1000 to 2000 किलोग्राम. Maneuverability होगी, ठीक है, low altitude maneuverable missile designed to evade radar and air defense system that will also use heat resistance material to withstand with the temperature up to 2000 degrees centigrade, and propulsion will be powered by scramjet engine. So now we will discuss each and everything in detail. The first concept, that is Mach. What is Mach? So if you consider the ratio of object speed or speed of any object divided by speed of sound, so whatever the number that you will have will be known as Mach number. So if Mach number is less than 1, then we will consider it as a subsonic. If Mach number is 1, then transonic. If Mach number is greater than 1 and less than 5, then it is supersonic. And now we are targeting, or we are aspiring to achieve Mach number greater than 5, that is Mach number 8, that is hypersonic. Okay, so first concept is related to Mach number. Now range is clear to you. Conventional weapon and nuclear warhead, very much clear to you. What do you mean by maneuverability? Maneuverability of missile is this. This is the maneuverability of missile, that its path can be changed. It can target anything. Okay, or you can say it can target movable object. So this is the example of maneuverability. Okay, low altitude, yes, because it is a cruise missile, so it will be having a low altitude and that can evade the radar of the enemy, China and Pakistan. तो ये सारा देख लिया. अब एक और चीज जो कॉन्सेप्चुअली मुझे बतानी है वो है स्क्रैमजेट इंजन. सो रैमजेट इंजन एंड स्क्रैमजेट इंजन ये भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट होने वाला है और सेल चल रही है, ठीक है. 15 जून को ये सेल क्लोज हो जाएगी. SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके जो 70,000 का कोर्स है आप 28,999 में खरीद सकते हैं, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है. जल्दी से ये बैच क्लोज होने वाला है, आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड सिमिलरली फिलॉसफी का भी जो बैच है वो 17 जून को क्लोज हो जाएगा. तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ 12,999 में फिलॉसफी का बैच भी एक्सेस कर सकते हैं. ये जो फाइल है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको. तो ये रहा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो कैसे होती है. बैलिस्टिक मिसाइल इसी फेस में इंटरसेप्ट हो जाती है या रडार में आ जाती है, तो उसको इतना टाइम मिलता है सामने वाले के जो एयर डिफेंस सिस्टम को कि वो उसको इंटरसेप्ट करके उड़ा दे, इतना टाइम मिलता है. लेकिन लो एल्टीट्यूड ग्लाइडेड मिसाइल जो होती है या हाइपरसोनिक ग्लाइडेड ट्रेजेक्टरी वो कुछ इस तरीके की होती है.
कि रडार यहाँ पे उसको डिटेक्ट करता है, तो जो डिफेंस सिस्टम होगा सामने वाले का, उसके पास बहुत कम समय बचता है कि उसको इंटरसेप्ट कर पाए। ठीक है, तो अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल की हमने बात करी या हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल की बात करी, वो इस प्रकार की होगी कि उसको डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मूविंग अहेड विद दिस इज द मैन्यूवरेबिलिटी, डायग्राम ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रैमजेट इंजन एंड स्क्रैमजेट इंजन। पहला ये वाला है, ये रैमजेट इंजन का है कि ये होते क्या है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम टर्बो इंजन। देखो टर्बो इंजन में क्या होता है कि वहां पर एक फैन लगा होता है, दैट फैन विल सक द एयर एंड दैट एयर विल बी बर्न अलोंग विद द फ्यूल, है ना, फ्यूल वहां पे भेजा जाएगा और उससे एक थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन रैमजेट इंजन में क्या है कि एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होगी उसके थ्रू यहां पर इंजेक्ट करवाई जाएगी एयर, इनलेट मैक greater than 1, which means supersonic speed. At supersonic speed, the air will be injected inside the engine. Okay, this will be the first step in the ramjet engine. ठीक है, the second step, the air will be compressed at subsonic level. Subsonic compression will happen, then air will reach here, that is combustion chamber, fuel will be mixed, fuel will be burned, and along with the fuel and air, that will be exhausted. So when that will be exhausted, it will get thrust here. Okay, तो exhaust कितने से होगा? Mach greater than 1. ठीक है, और greater than 1 यहां पे आप 1 to 5 और अप टू 5 स्पीड अचीव कर सकते हो, दैट इज सुपरसोनिक स्पीड। तो जो सुपरसोनिक स्पीड यहां पे 1 या 2 की रही होगी, आपको वही सुपरसोनिक स्पीड मैक 5 मिल जाएगी। दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ रैमजेट इंजन। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, रैमजेट इंजन जो होता है वो पहली चीज तो ये कि रेस्ट कंडीशन में काम ही नहीं करता है। पहले आपको किसी भी बूस्टर से सुपरसोनिक स्पीड तक उसको लाना होता है। अब सुपरसोनिक स्पीड पे आपका फाइटर जेट चल रहा है, ठीक है, या आपकी मिसाइल चल रही है, आप कुछ भी बोल दो, चल रहा है, उस सुपरसोनिक स्पीड पे सपोज दैट स्पीड इज मैक इज इक्वल्स टू 2, उस स्पीड पे इंजन में अब जाएगा क्या? एयर। उस एयर को कंप्रेस किया एट सबसोनिक लेवल और उसके बाद यहां पे कंबशन चैम्बर आया। कंबशन चैम्बर में उस कंप्रेस्ड एयर के साथ में फ्यूल की बर्निंग होती है, वो फ्यूल एग्जॉस्ट होता है और एग्जॉस्ट जितना होता है वो मैक ग्रेटर देन 1 फिर होता है। लेकिन यहां पर सपोज आपने 5 मैक अचीव कर लिया क्योंकि फ्यूल भी बर्न हुआ है साथ में, तो आपको पूरा जो एग्जॉस्ट है, जो थ्रस्ट है, वो कितना मिल जाएगा? मैक 5। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ रैमजेट इंजन। अब आते हैं स्क्रैमजेट इंजन की फंक्शनिंग पे। स्क्रैमजेट इंजन की फंक्शनिंग में ऐसा कोई कंप्रेशन नहीं होता है सबसोनिक लेवल पे, ठीक है, तो इसी वजह से इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि सुपरसोनिक एयर ही आती है, सुपरसोनिक एयर ही कंबशन चैम्बर में आती है और उसको फिर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड पे वहां पे बाहर निकाला जाता है। तो ये आया यहां पे एयर, सुपरसोनिक कंप्रेशन ही हुआ, यहां पे सबसोनिक कंप्रेशन नहीं है, सुपरसोनिक कंप्रेशन है, कंबशन चैम्बर में आया और सुपरसोनिक एग्जॉस्ट हुआ, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्पीड है वो मैक ग्रेटर देन 5 मिल जाएगी। और जैसा कि हमारी अभी जो प्रोजेक्ट विष्णु में अचीव करने का एस्पिरेशन है वो है मैक 8। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ स्क्रैमजेट इंजन। तो रैमजेट इंजन में जो कंप्रेशन होता है एयर का वो सबसोनिक लेवल पे होता है। स्क्रैमजेट इंजन में सबसोनिक लेवल पे कोई कंप्रेशन नहीं होता है, सुपरसोनिक की कंप्रेशन होता है। एज इट इज वो कंबशन चैम्बर में आती है, वहां पे फ्यूल के साथ बर्न होती है और उसके बाद एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। सो नाउ फ्रॉम स्क्रैमजेट इंजन वी आर ट्राइंग टू अचीव मैक 8।
ओके, दिस विल बी द फंक्शनिंग। तो हमने 2-3 कॉन्सेप्ट यहां पे देख लिए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी, मैक नंबर एंड स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन। तो इसमें रैमजेट इंजन नहीं रहेगा, स्क्रैमजेट इंजन रहेगा, ठीक है। और स्क्रैमजेट इंजन की भी टेस्टिंग पहले से ही डीआरडीओ कर चुका है और उसमें सक्सेसफुल भी रहा है। इसके बाद देखते हैं कि दुनिया में किस किस के पास में इस टाइप की मिसाइल है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और वो भी लंबी रेंज की। तो हमारे पास है ब्रह्मोस, अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, जो कि मैक 6 to 8 अचीव करने का टारगेट रखती है। उसकी भी रेंज हमारा टारगेट है कि 1500 किलोमीटर हो जाए, अंडर डेवलपमेंट है। ओके, एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशियाज जिरकोन मिसाइल। अभी रशियाज जिरकोन मिसाइल वी विल डिस्कस, ठीक है। फीचर क्या होगा, अगेन स्क्रैमजेट पावर्ड, डिजाइंड फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक, इंस्पायर्ड बाय रशियाज 3M22 जिरकोन एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रोल होगा, एनहेंस इंडियाज नेवल एंड एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर्टिकुलरली इन इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है। इसके बाद देखें यूनाइटेड स्टेट्स के पास में, क्योंकि हम जब भी ऐसा कोई डिस्कशन करते हैं तो 3 या 4 कंट्री का देखते हैं, इंडिया के साथ रशिया, चाइना एंड यूएस। तो यूएस के पास कोई है, हाँ बिल्कुल है। यूएस के पास कौन सी है, डार्क ईगल, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वीपन, LRWH, उसको डार्क ईगल भी कहते हैं। मैक 5 की स्पीड, 2775 की रेंज, 2024 में टेस्ट कर लिया, ठीक है। ट्रक लॉन्च्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। अब हाइपरसोनिक ग्लाइड जो ट्रेजेक्टरी आप जानते हो कैसी होती है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रोल, प्रोवाइड द यूएस विद द रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक हाई वैल्यू टारगेट वर्ल्ड वाइड विद इन मिनट्स। दिस इज डार्क ईगल एंड दिस इज हॉक, हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट। ये भी मैक 5+ की स्पीड अचीव किया हुआ है, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज्ड बट लाइकली सेवरल 100 किलोमीटर्स, है ना। जैसे कि डार्क ईगल की भी 2775 है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे ज्यादा ही होगी किसकी, लेकिन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया है यूएस ने। स्टेटस अंडर डेवलपमेंट बाय DARPA with successful test of scramjet powered system. AL launched a scramjet powered cruise missile designed for integration with the fighter jet. रशिया की है 3M22 जिरकोन और इसको दुनिया की फास्टेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोला जा रहा है, ठीक है। और यहीं से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है ब्रह्मोस 2 को डेवलप करने में। मैक 9 अचीव किया है, रेंज इतनी है, ऑपरेशनल इंडक्टेड द रशियन नेवी, स्क्रैमजेट पावर्ड, बाकी सब आप जानते ही हैं क्या है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा कि जिरकोन क्या है, तो जिरकोन आपको पता होना चाहिए, रशियन हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। एक और है एवनगार्ड अप टू मैक 20 इंटरकॉन्टिनेंटल ऑपरेशनल है, ये भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डिप्लॉयड ऑन ICBMs कैपेबल अनप्रेडिक्टेबल मैनूवर टू इवेड मिसाइल डिफेंसेस, ठीक है। अब एक और जो सबसे अनोखी चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो अभी हमने स्क्रैमजेट पढ़ा कि क्रूज मिसाइल में जो पावर आएगी, वो स्पीड आएगी, वो रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन से आ रही है। लेकिन चाइना ने क्या किया कि बैलिस्टिक मिसाइल के कॉन्सेप्ट को और क्रूज मिसाइल के कॉन्सेप्ट दोनों को मिला दिया। कैसे, आप जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल में जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं जिससे उसको थ्रस्ट मिलता है, वो होती है सॉलिड बूस्टर। तो सॉलिड बूस्टर से स्पीड बहुत ज्यादा अचीव हो जाती है, लेकिन उसका एक नेगेटिव भी है, मैन्यूवरेबिलिटी नहीं होती है। तो चाइना ने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। पहले तो सॉलिड बूस्टर या बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से उसको एक्सो एटमॉस्फेयर में भेजा और वहां से अचीव की स्पीड ग्रेटर देन मैक 20। और जब टर्मिनल फेस में मिसाइल आ रही होगी तो वहां पे उसको क्रूज मिसाइल बना दिया। तो 2 मिसाइल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है DF-17 विथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। कैसे, देख लीजिए, स्पीड मैक 20 अचीव किया हुआ है चाइना ने, ठीक है। रेंज भी अच्छी खासी है, ऑपरेशनल सिंस 2019 बना चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल विद ए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, मतलब क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया टेक्नोलॉजी को। कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड, हाईली मैन्यूवरेबल। तो मैन्यूवरेबिलिटी कहां से आएगी,
हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से, स्ट्रेटेजिक रोल डिजाइन टू पेनिट्रेट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग यूएस एंड एलीट सिस्टम एंड टारगेट रीजनल एसेट्स। कैसा है ये सिस्टम देख लीजिए। ट्रेजेक्टरी एट लॉन्च साइट, वही वाली ट्रेजेक्टरी किसकी है, बैलिस्टिक मिसाइल की, एपोजी ऑफ द मिसाइल फ्लाइट ट्रेजेक्टरी। अब यहां से जब वो इसके डाउन फेज में आने वाली होगी, ठीक है, पॉइंट टू वेरी ट्रेजेक्टरी इन द मिड सेगमेंट, और यहां से वो अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकती है। टर्मिनल गाइडेंस, यहां पे हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है वो एक्टिव हो जाएगा और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये बड़ा यूनिक काम किया है चाइना ने इन देयर DF-17, ठीक है, कि दो टेक्नोलॉजी को मिक्स किया जिससे स्पीड भी बहुत ज्यादा आ गई, और स्पीड बहुत ज्यादा आने के बाद में उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को भी इवेड कर दिया, और अब उसमें वो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी लेकर के आ गए बाय यूजिंग दैट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो ये बहुत एक अनोखी टेक्नोलॉजी है जो चाइना लेकर के आ गया है, ठीक है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं हम लोग कि कंपैरेटिव, भाई इंडिया के पास तो अब आने वाला है लेकिन बाकी कंट्रीज के पास पहले से ही है। तो स्पीड के बारे में बात करें तो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 जो मैक 6 to 8 अचीव करेंगे, चाइना ऑलरेडी क्लेम कर चुका है मैक 20 इन देयर DF-17। रेंज की बात करें तो रेंज भी कंपेरेबल ही है, ठीक है, लेकिन यूएस के डार्क ईगल के पास जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, 2775 है। मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्टेल्थ की बात करें तो हाँ होगी, मैन्यूवरेबल होगी, स्टेल्थ होगी, ठीक है। प्रोपल्शन सिस्टम इंडिया, यूएस, रशिया, ओके, हेवीली इन्वेस्टेड इन स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, बट while China's system combine ballistic missile with the hypersonic glide vehicle for extreme speed and strategic impact तो होगा ही, ठीक है। सो दिस इज द डिस्कशन रिलेटेड टू हाइपरसोनिक, क्या था, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दैट इज प्रोजेक्ट विष्णु। तो देखते हैं इसमें कुछ और डेवलपमेंट होगा तो हम उसके टेक्निकलिटीज के बारे में भी और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.